Okay. Yes. So let us begin today's discussion. And last time we ended up at the variation of intensity with the distance from the source and relation between power and intensity. That's we were discussing. And if you look at this diagram, which I'm sharing on the page, everybody can see the page now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So look at this diagram in which you have spherical surfaces of increasing radii. The innermost sphere is shown with a radius of 1 meter, and the area here, which is this spherical surface area, part of the area which is a plane surface area, let's say it is of 1 unit. 1 unit means the area of this, if it's a spherical shape, sorry, you can say it's a squared shape area, then its dimension will be 1 meters or 1 unit at least, you can say. Then it means its area would be 1 unit. It may be 1 meter square, it may be 1 kilometer square, whatever it is, but let's say it is 1 unit. And then traveling outwards away from this point source, we have, if the radius increases to twice of the first, let's say 2 meters, then area becomes double, then it means it's 4 units. So it means the as you move outward towards the outer surface spheres, you are basically uh, increasing the radius of the spherical surfaces, and accordingly the surface area also increases. So what we say that, suppose that there is an explosion in which 10,000 watts of power goes into producing light. A pulse of light, that is an electromagnetic wave, spreads out of uniformly in all directions and carries this power to the observer. It's just imagining an example that suppose due to an explosion light is produced of how much power? 1000 watts. There are some students wait in the waiting room. आप उनको एंटर करते हैं. मेरे पास जो शो हो रहे हैं उनको मैं साथ साथ एंटर करता जा रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास कोई वेटिंग रूम में शो नहीं हो रहे स्टूडेंट्स, लेकिन जो आते जा रहे हैं मैं उनको एडमिट साथ साथ करता जा रहा हूँ। ओके, okay, so we should continue now. So do you understand the example that there is a, just imagine an example that there is some explosion happening somewhere, and due to that explosion a light of the power of 10,000 watt is produced, and which is traveling outward away from the source, and the pulse of light, which is basically an electromagnetic wave, spreads out uniformly in all directions away from the, this is the point source where the light is being produced, so the explosion is happening, and these are the electromagnetic pulses or the waves which are spreading outward in all directions, in all possible directions, here, there, and everywhere, and they carries power to the observer. Observer means anything which
which receives that light. The spherical wave fronts carry a total power of how much? The spherical wave fronts carries a total power of 10,000 watt as it spreads out. This means that the power carried by each square meter of the wave is 10,000 watts divided by total surface area of the wave. Total surface area of the wave. Look at this diagram again. As I explained in the beginning of this lecture, that this is the source where the electromagnetic wave is being produced with a power of 10,000 watts, and the power carried by, because the power is spreading out away from the source, so this means that the power carried by each square meter means, look at this is each square meter area. As I told you, this is 1 meter square area, or one unit means the unit of the area, whichever comes here. If the dimensions are in meters, because as here we have a radius of 1 meter, so this square meter, because it's of the square shape, the area which is receiving the power in this direction is 1 meter square. Similarly, this total area is how much? 4 meters square, or 4 units, out of which this is 1 meter. This is divided into four equal parts, 1, 1, 1, and 1. So you can say this is the same replica of this area here. So what we can say, the power carried by each square meter of the wave, of this wave, is 10,000 watts over total surface area of the wave. So it means the surface area of the wavefront is that of the sphere with a radius that increases as the wavefront moves out from the explosion. So from the previous lecture we know that these are the spherical wavefronts. These circles which are shown here, these are spherical wavefronts, this one and this one, because we are talking about a point source of light or the point source of electromagnetic waves. So it means the light which is being produced as a result of some explosion is traveling outward in all possible directions through these spherical surface wavefronts. And let's say 1 unit area of each spherical surface is 1 unit. Similarly, this becomes a larger sphere. The unit area here becomes 4 units. Apart from which, this is also composed of these small area units like this. आप समझ आ रही है सबको मेरी बात में क्या बताना चाह रहा हूँ आपको? सर हेलो, इतना समझ नहीं आ रही सर। नहीं आ रहा समझ। आपको समझ नहीं आ रही तो आप लोग कोई क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहे? मैं इसी आप लोग का रिस्पांस भी साथ जो है ना वो प्रॉम्प्ट रिस्पांस होना चाहिए। देखें, हो ये रहा है, सब लोग और से सुने और इसको समझें कि ये एक सेंटर ऑफ द सफियर है। फर्ज कर ले, सफियर का तो पता है सबको ना क्या होता है सफियर, जस्ट लाइक अ फुटबॉल सरफेस। ओके, यस सर। उसके सेंटर पे कोई एक्सप्लोजन हुआ है और एक लाइट पल्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हुई है जो अवे फ्रॉम द सोर्स, यानी पॉइंट ऑफ एक्सप्लोजन से अवे स्प्रेड आउट हो रही है, बिकॉज उसमें एनर्जी है, उसमें पावर है, और वो जो पावर अवे फ्रॉम द सोर्स स्प्रेड आउट हो रही है, उस पावर की जो है वो इंटेंसिटी हमें पता है वो कितनी है, पावर डिवाइडेड बाय एरिया। इंटेंसिटी किसके बराबर होती है? पावर पर यूनिट पावर एरिया, डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है ना? ये मैंने पहले भी क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये वही बात Yes, यहाँ sir. पे हमने सपोज किया कि लेट्स से 10,000 वॉट की पावर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं, जो कि एक यहाँ पे जब इस सफेरिकल ये जो सफियर्स हैं ये इमेजिनरी सफियर्स हैं, ठीक है? ये अगर आप इनको रियल भी सपोज करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से ये लाइट पल्स जो है ये इस सफियर की सरफेस पे स्ट्राइक करेगी। अगर ये सफियर ट्रांसपेरेंट है तो इसमें से आगे ट्रैवल कर जाएगी,
फिर आगे ट्रैवल करते करते आगे स्प्रेड आउट होती जाएगी। ये वैसे ही ना जैसे सनलाइट हम तक पहुंचती है, दूर से सूरज हमें कैसे नजर आता है, पॉइंट सोर्स ही तो नजर आता है, कैसे नहीं है। वी यस ऑब्जर्व सर, सन एज तो अ ऐसे पॉइंट ही है। सोर्स। जी, ऐसे ही ऐसे दूसरे जो आप कह दूर रहे से हैं हमें नजर यंगर आ रहा सन है, इस हमें तो तरह ऐसे नजर लग रहा है आता ना जैसे वो कोई पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, है। यस सर, लेकिन एक्चुअली तो उसका साइज हमें पता है कि अर्थ से बहुत बड़ा है, लेकिन दैट बिहेव्स एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। तो हमारे पास जो लाइट, सन लाइट जो सरफेस ऑफ अर्थ पे रीच करती है, वो हम कहते हैं कि वो प्लेन, वो बेसिकली सफियर की शक्ल में, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट्स की शक्ल में हम तक पहुंचती है। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट का मतलब, वेव फ्रंट का मतलब मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इट्स सिंपली दी डायरेक्शन इन विच दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स, या कोई भी जो वेव ट्रेवल करती है वो जिन डायरेक्शन में स्प्रेड आउट हो रही होती है, हम ये कहते हैं कि वो वेव फ्रंट्स की फॉर्म में ट्रेवल कर रही होती है। तो यहाँ पे जो पावर होगी, जो इंटेंसिटी होगी, दैट विल बी, अगर हम 10,000 वॉट की इन पावर की रेडिएशंस इमेजिन कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है जो इंटेंसिटी कैरिड बाय द पावर कैरिड बाय ईच स्क्वायर मीटर ऑफ द वेव इज 10,000 वॉट्स ओवर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेव। अब जैसे यहाँ पे है, अगर अगर इस फार्मूले को मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ इस सरफेस एरिया पे, तो मेरे पास क्या है, टोटल सरफेस एरिया इस यूनिट का कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। तो पावर कितनी हो जाएगी, 10,000 वॉट ओवर 1 मीटर स्क्वायर एरिया। अगर मैं इस स्फेरिकल वेव फ्रंट के ऊपर जाऊंगा तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। सो इट मीन्स द सरफेस एरिया ऑफ द वेव फ्रंट इज दैट ऑफ द स्फीयर with a radius that increases as the wavefront moves out from the explosion। अब टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है स्फीयर का, पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। डू यू नो दैट? हेलो, यस सर। एवरीवन नोज दैट ना, दिस इज द सरफेस यस एरिया सर, ऑफ अ स्फीयर। जो रेडियस इंक्रीज होता जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज होता जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द सरफेस एरिया ऑफ द होल स्फीयर, पूरा जो स्फीयर होता है उसका सरफेस एरिया, this one, the whole surface area, this one, okay, not specifically about this small portion but the total surface area of this whole sphere। ये कोई भी किसी भी साइज का स्फीयर होगा। so as the radius increases, ठीक है ना, जो सरफेस एरिया इंक्रीज होता जाएगा, total surface area of the wave front is that of the sphere with the radius that increases the wave as the wave moves away from the explosion। Now इसका मतलब क्या है, therefore the energy you will increase, therefore the energy you will intercept if you stand at a distance from the source of the explosion at a sheet of an area 1 meter square, it is given by 10,000 watt over 4 pi squared, or in general we can say power of the source divided by 4 pi square। सपोज करो, इमेजिन करो कि मैं एक ऑब्जर्वर हूं और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये पॉइंट ऑफ एक्सप्लोजन है, ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, और मैं यहाँ पे इस शीट पे खड़ा हूँ। अब सब लोग मेरी बात गौर से सुनेंगे, समझेंगे, ओके। हेलो, यस सर। ठीक है। सो मैं यहाँ पे, अगर आई एम स्टैंडिंग हेयर, आई विल रिसीव सम पावर। When I receive some power, so that power, how much power do I receive depends upon on the distance, this, on the radius r where I am standing, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि मैंने जो पावर रिसीव की है, अगर सोर्स से पावर जो स्प्रेड आउट हो रही है, दैट इज 10,000 वॉट्स, and I'm standing at a distance of 1 meter from the source, the power I receive will be 10,000 watts over 4 pi square। क्यों? Why? Because right now I'm standing at the surface of this sphere।
यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ चला जाऊंगा तो फिर मेरा रेडियस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 1 से 2 मीटर हो जाएगा। तो इंटेंसिटी पावर की और कम नहीं हो जाएगी, बिकॉज एज द रेडियस इंक्रीजेस उतनी पावर कम होती जाएगी, क्योंकि पावर तो कांस्टेंट है। Yes, sir. yes sir, क्या ख्याल है? बिकॉज पावर तो कांस्टेंट है, 10,000 वॉट पे है, आर बढ़ता जा रहा है, और जो ही आर बढ़ता जाएगा पावर भी डिक्रीज होती जाएगी। और एज हाउ हाउ इट इज डिक्रीजिंग, 4 पाई इज अ कांस्टेंट, ठीक है, ये वाली वैल्यू तो वैसे कांस्टेंट है। तो इट्स बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन इनवर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। So this rule is known as the inverse square law. इसको क्या कहते हैं? Inverse square law. So all waves emitted by a point source obey the inverse square law. जितनी भी point sources से जो भी electromagnetic radiations emit out होती हैं, वो point source of law को points inverse square law को follow करती हैं. So inverse square law simply means कि as you move away from the source of electromagnetic waves, your distance varies as a square of the distance. So it means your power received by the observer would be decreasing as the square of the distance. This is called one inverse square law. So as we move out from the source of a three-dimensional sphere, the intensity decreases as 1 over r square. I hope you got this point, everyone. Hello. Can you Yes, put the sir. values in the formula and Sorry. can you put the values in the formula and show us? Because I'm confused about R. For example, if you put the value of R here, अगर आप R को 1 पुट करते हैं, आप खुद कैलकुलेट करके मुझे बताएं ना, अगर यहाँ पे R की वैल्यू 1 हो जाएगी तो इंटेंसिटी वुड बी 10,000 वॉट ओवर 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू आपके पास आ जाएगी, वो कैलकुलेट कर लें। और अगर मैं यहाँ पे R की वैल्यू 2 पुट कर दूंगा तो दैट विल बी 4 इंटू 4 16 पाई। तो पहले 10,000 4 वो पाई से डिवाइड हो रहा था, फिर 16 पाई से डिवाइड होगा, जब आर की वैल्यू 3 हो जाएगी फिर वो 3 स्क्वायर इज 9, 9 इंटू 4 36 पाई। तो एज यू आर मूविंग आर इंक्रीजिंग मीन्स एज यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, द पॉइंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जो आप आर से इंक्रीज करते जाएंगे, इंटेंसिटी विच यू आर रिसीविंग, बिकॉज इंटेंसिटी इज फिक्स्ड, पावर इज फिक्स्ड, पावर इज कांस्टेंट, और पावर जो भी यहाँ पे वैल्यू, ये तो हमने कोई वैल्यू इमेजिन की ना 10,000 की, तो अगर पावर ज़्यादा होगी तो आर के बढ़ने से फिर भी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि जो सोर्स की पावर होती है वो उस पॉइंट सोर्स पे डिपेंडेंट होती है कि वो कितनी पावर से रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो एट द पॉइंट ऑफ सोर्स वो वहाँ पे फिक्स्ड होती है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? ये देखें, ये पॉइंट सोर्स है, ये जो ब्लैक डॉट बीच में नजर आ रहा है आपको, यू गेटिंग दिस? yes sir, ऑल अदर एज वेल, प्लीज रिस्पॉन्स। Yes, sir. बाकी लोग कंप्यूटर ऑन करके सो तो नहीं गए साथ? No, sir. हाँ, no sir, गेट आउट ऑफ योर बेड्स एंड देन टेक द लेक्चर प्लीज, एक्टिव होके बैठे हैं। बात समझ आ रही है मेरी? yes sir, Yes, sir. Okay. So I want you that you should contribute and you should मतलब क्वेश्चनिंग जरूर करें, आई लाइक दैट, बट साफ रिस्पॉन्स भी करें। तो ये देखो ना, ये पॉइंट सोर्स है, जो पावर ऑफ द सोर्स है वो यहाँ पे फिक्स्ड है, जिस पावर की रेडिएशन प्रोड्यूस होनी है। आगे आर इंक्रीज होता जा रहा है, पहले 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4, ऐसे। तो जितना आप इस सोर्स से अवे जाते जाएंगे, पावर क्योंकि कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस के बढ़ने से इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी, Decrease. ठीक है ना। एंड दैट इंटेंसिटी इज डिपेंडेंट अपॉन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट सोर्स, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द इनवर्स स्क्वायर लॉ, because intensity is inversely proportional to the square of the distance from the source. Is it clear to everyone? तो सर फिर कौन सा R यूज करें? और भाई जो भी वैल्यू गिवन होगी ना, ये तो फार्मूला बता दिया ना आपको,
You are not solving a numerical. You are trying to understand the concept. Got it or not? Okay, sir. Yes, sir. The value of r would be in any case. For example, I say you that you are standing at a distance of 3 meters from the source. Then your r would be 3, isn't it? Yes. Just substitute the value. 4 pi is a constant. What is the value of pi on Mondays? 3.1. And 22 what's the divided value by on Saturdays? same. Same? Are you sure? Yes, sir, it does not change. The value of pi does not मैंने तो change. सुना है मंडे ट्यूसडे को वैल्यू और होती है, सैटरडे संडे को और होती है. No, sir, this is a constant. इट्स अ कांस्टेंट. चलो शुक्र है अल्लाह का, ये तो पक्का कंफर्म हो गया ना. वो कपड़ा पड़ा हुआ ये मेरे ख्याल करो means the value of pi as it's a constant, so it means the value of the intensity of the electromagnetic waves would depend upon the value of the distance from the source. So as r changes, the intensity changes. Now is it confirmed to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. If you got this idea, then we can move further on with the idea of electromagnetic waves and the communication. And so if you remember, last time we discussed about how electromagnetic waves can be detected. Remember previous lecture? उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हमने डिटेक्ट कैसे करना है, हाउ दे आर एमिटेड एंड हाउ दे आर रिसीव फ्रॉम द सोर्स एंड हाउ दे आर रिसीव फ्रॉम द एंटेना और द एरियल्स, स्पेशली रेडियो वेव्स. Radio waves. हमने रेडियो वेव्स की डिटेक्शन डिस्कस की थी, जैसी डायग्राम में मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन्स की वाइब्रेशन से पल्स प्रोड्यूस होती है और उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम कहते हैं. और फिर हमने डिफरेंट मीडिया में स्पीड ऑफ लाइट को डिस्कस किया था, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्कस किया था कि डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ द मीडियम. याद है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So similarly, we can now further the idea of electromagnetic waves and their communication. And first of all, we will discuss about television and radio transmissions. Television and radio transmissions. As you know, television and radio transmissions are a very prominent way of communication in this modern era. So हमने इसका जनरल आइडिया, इसका बेसिक आइडिया अंडरस्टैंड करना है कि टेलीविज़न और रेडियो कम्युनिकेशंस जो हैं वो किन प्रिंसिपल्स, किन असूलों के तहत जो है वो होती हैं, और हम तक ये सारी ट्रांसमिशन थ्रू टेलीविज़न चैनल्स और रेडियो चैनल्स कैसे पहुंचती है थ्रू सैटेलाइट्स एंड अदर सोर्सेज एज वेल. ठीक है जी. सो टेलीविज़न एंड रेडियो ट्रांसमिशन में बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले इसका आइडिया या इसकी जो बेसिक रूट कॉज थी वो ये कि इन 1887
हाइंड्रिक हर्ट्स, एंड इफ यू रिकॉल हर्ट्स इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसने एक बात नोटिस की थी और उसने ये नोटिस किया था कि ए हाई वोल्टेज स्पार्क will be produced when a high voltage spark is produced. Another spark would appear across a gap in a metal ring several meters away. क्या मतलब? उसने अपने ज़माने में, I'm talking about the late 19th century, उस वक्त उसने बात ऑब्जर्व की कि जब एक हाई वोल्टेज स्पार्क प्रोड्यूस होता है किसी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उस वक्त नॉन थी, तो उससे काफ़ी डिस्टेंस पे पड़े हुए एक मेटालिक रिंग में, रिंग के अंदर जो गैप होता है वहाँ पर भी एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब बेसिकली उस स्फेरिकल जो या जो मेटालिक रिंग है, जो सोर्स ऑफ स्पार्क है, उससे एक डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है। इट इज़ नॉट फिजिकली एक्चुअली टचिंग इट। The high voltage spark produced a pulse of rapidly varying electric and magnetic fields that spread through space without the need for any intervening matter to carry the wave. ठीक है ना, बात समझ आ रही है? यानी ये है बात, बेसिक आइडिया, या जिसका जहाँ से सारी स्टोरी स्टार्ट होती है वो ये कि अगर आप एक हाई वोल्टेज स्पार्क जैसे बैटरी से या किसी ऐसी चीज़ से जो जिससे हाई वोल्टेज स्पार्क प्रोड्यूस हो, उससे क्या होगा, एक नियर बाय रीजन में एक वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और क्योंकि मेटालिक रिंग में ये इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है उसने एक स्पार्क प्रोड्यूस किया था, दैट्स वन। ठीक है, तो उस स्पार्क की वजह से ये बात सामने आई है, ये आइडिया मिला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है दैट कैन बी इंड्यूस्ड इन ए मेटालिक रिंग और इन ए मेटालिक रीजन प्लेस नियर बाय अनदर सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज। ठीक है ना? सो इस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया इन 1907 में। Marconi was able to use such radio waves. These were called by that time as the radio waves to transmit the first sound wave across the Atlantic Ocean. मतलब 1907 में मार्कोनी ने across the Atlantic Ocean इसी मेथड से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव जो थी वो ट्रांसमिट की थी। Across the Atlantic means thousands of miles away. You can understand that. So the radio waves form a part of electromagnetic spectrum. We know that electromagnetic wave spectrum का जो सबसे longest wavelength part है वो कौन सा है? वो radio waves का part है. And they can travel at a speed of around with the speed of light 3 to 10 to the power 8 meters per second. और इनकी जो frequency range है that is around 30 to 3000 hertz. So you can simply say कि जो रेडियो ट्रांसमिशन है, ठीक है, रेडियो ट्रांसमिशन कैन हैपन अक्रॉस द ग्लोब विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। You got this point or not? Hello? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है ना? तो जो रेडियो ट्रांसमिशन थी, they were the first phenomena or they were the first step towards modern ways of communications. ठीक है, तो लेट इन द 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में तक ये जो फिनोमिनन था इसके बारे में काफ़ी कुछ लोगों ने जाना, डिस्कवर किया और इसको इम्प्लीमेंट करने की डिफरेंट मेथडोलॉजीज अडॉप्ट की एंड अल्टीमेटली दे वर एबल टू ट्रांसमिट रेडियो वेव्स from one station or from one point which was thousands of miles away from another point, another destination, without any physical link between those two regions. So electromagnetic radiations in the form of radio waves
could be transmitted across Atlantic. ठीक है ना, समझ आ रही बात? तो रेडियो वेव Yes, होती है sir. बिकॉज इनकी वेवलेंथ लॉन्ग होती है, मोर देन जो है वो किलोमीटर्स में, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स में इसकी वेवलेंथ कंसिस्ट करती है. तो दे वर यूज टू फॉर डिस्टेंट कम्युनिकेशंस. ठीक है ना, इसके यूजेस में देखें, लुक एट द टेबल शोन हियर 2.5 में. तो इसकी भी जो ट्रांसमिशन बैंड्स एंड फ्रिक्वेंसीज में देखें, तो जो फ्रिक्वेंसी रेंज है बिटवीन 30 to 3000 हर्ट्स, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी. ये बहुत लो जो है वो फ्रीक्वेंसी है, बिकॉज ये रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी है, और इसकी वेवलेंथ ग्रेटर देन 100,000 मीटर्स होती है, यानी 1 लाख मीटर से ज़्यादा की वेवलेंथ है. रेंज इसकी बहुत ज़्यादा है. तो इसके यूजेस जैसे सबमेरीन लिंक्स हो गए, ठीक है ना, इसके डिफेंस वगैरह में यूजेस ज़्यादा है. देन यू मूव टूवर्ड्स 3 to 300 किलो हर्ट्स में जाएं. ये वेरी लो, दैट इज कॉल्ड वेरी लो फ्रीक्वेंसी. लो इसलिए कह रहे हैं कि इसकी इन द सेंस बिकॉज इसकी इंटेंसिटी, या दूसरे लफ्ज़ों में इसकी फ्रिक्वेंसी तो बहुत ज़्यादा है, पर इसकी इंटेंसिटी बहुत लो है, बिकॉज इंटेंसिटी इज डिपेंडेंट अपॉन द डिस्टेंस. ठीक है ना, इट्स अ वेरी लो फ्रीक्वेंसी एंड इट इज कॉल्ड, the wavelength ranges from 100,000 meters to around 1000 meters, और इसकी रेंज तकरीबन 1500 किलोमीटर्स में है. एंड डिफेंस यूज में यूज होते हैं, ये वायरलेस कम्युनिकेशन डिफेंस यूज में आते हैं ये. एंड सिमिलरली फ्रॉम